A very good morning to one and all. We'll start the session next by 11:05 as we are waiting for more participants to join in. I hope my voice is audible. You can just say yes in the chat box, please. Thanks for the confirmation, Neeraj, Tejas, Azim, Khuda, Baksh. XYZ, please rename yourself. XYZ, please rename yourself. We won't be able to continue like this. Please rename yourself. I request everyone to please write your complete name, Kirti. If possible, write your complete name. Payal, same goes for you as well. XYZ, please rename yourself. Else we have to remove you. अंकित पाटिल, you can switch off the video. I request no one. I mean, कहीं पर भी वीडियो ऑन करने की किसी को भी जरूरत नहीं है. Okay, a warm welcome to one and all. A very good morning, and I hope my voice is audible and you can see the PPT on the screen as well. Quick yes in the chat box will really help. A mandatory check these days. Thank you. Thanks. Thank you. Ankur sir, if you are there, you can just switch on your video.
Thank you. Thank you. Hi, sir. Very good morning to everyone. Am I audible, sir? Yes, 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 you are. Okay, I request Adi Ashita to please rename yourself. अपना नाम पूरा नाम लिख दीजिए. Okay, so a very good morning to one and all. It's 11:03 and I think we are all set to start the session today. So by the way, my name is Prashant and with me we have Ankur sir, and as mentioned that I am a verbal trainer and Ankur sir being quantitative aptitude and LR trainer. And the highlights of this particular session, and as the name goes, we are talking about strategies to get 99 percentile, right? So before that, we'll talk about कितने मार्क्स पे 99 percentile आता है, how much questions you need to solve, CAT throughout the years. हम लोग इस बारे में थोड़ी सी बात करेंगे. But before that, I'll also want to know from you guys कि आप संडे मॉर्निंग को अपना कीमती वक्त जाहिर करके यहाँ पर आए हैं, अपनी नींद डिस्टर्ब करके यहाँ पर आए हैं. So there must be something which is going in your mind. There are certain things which you want to be clear with. So I just want to understand ki what are you expecting from this particular session? What are your questions? What do you want to know? Quickly in the chat box, please. Because so that rather than getting into my formal PPT, we can at least see what our students expecting from this particular session. Over to you guys, quickly in the chat box, please. Okay, so we have a question. So we are talking about how to prepare for CAT. Okay, Lakshya, I'll talk about this. A very good morning. Sir, calculator is allowed in CAT exam. Riyanshi, if this is your question, yes, calculator, वहाँ पर on-screen calculator मिलेगा. So don't worry at all. Okay. To get the overview of CAT examination, about CAT and other MBA examination, about scoring good score in CAT exam, how to remain motivated through this time of 5 months. Very good. There are so many videos on YouTube, but the correct strategy to prepare. Okay, Lakshya Jain, I think that's what mentors can really help you. How to prepare for CAT for an average student. Are you getting SMS? Yes, Ankur sir, I am getting because they are directly responding to me. I haven't studied mathematics. I'm just making, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ. So I haven't studied mathematics in class 12. Will it be difficult for me to solve questions for CAT? Yes, it will be. If the things would have been easy, तो फिर बात ही क्या थी? Difference between PGDBM and MBA. Give some information about PGDBM in pharmaceutical management. What is the syllabus for CAT examination? Sir, on-screen calculator, isn't it time consuming? Yes, Chintan, it is time consuming because अगर आप calculator use कर रहे हो, which means आप CAT की strategy को नहीं पकड़ पा रहे हो. Calculator सिर्फ formality के लिए दिया जाता है, nothing else. Will CLAT be online? Yes, CLAT is online examination is for sure. Okay, done. So more or less, I think आपकी questions are similar. We just want to know typically sir आप strategies to CAT 99 percentile है तो ठीक है. पहले हमें ये बता दो CAT का syllabus, CAT कैसे करना है, क्या करना है. जय हिंद सर handicap को minimum कितने marks चाहिए IIM में admission देने के लिए. Okay. How to complete syllabus on time, Riyanshi? Fine. Can we prepare MBA CET in 2 months? You can prepare anything, right? Okay. Chalo. So before this, so let me quickly start the session when we are talking and बीच बीच में हम लोग अंकुर सर की help ले लेंगे because when it comes to quants he will be helping us out for sure. Okay, Aditya Madheshiya. So Saloni ma'am, I think Adi ने message कर दिया, he is Aditya Madheshiya. Okay. So when we talk about CAT,
देखो मैं पहली चीज आप लोगों को क्लियर कर देना चाहता हूं और आप इस चीज को ध्यान से सुने, ठीक है। एक चीज स्टूडेंट के टिपिकली हमारे से पूछता है, सर क्रैक कैट में क्या 2 महीने में कर दूंगा या 3 महीने में कर दूंगा या 5 महीने में कर दूंगा? गाइस, जो क्रैक कैट करने की बात है, वो 50 परसेंटाइल वाला भी क्रैक करता है, वो 70 परसेंटाइल वाला भी क्रैक करता है, वो 90 परसेंटाइल वाला भी क्रैक करता है और वो 99 परसेंटाइल वाला भी क्रैक करता है। क्रैकिंग कैट तो सारे ही कर रहे हैं। ये जितने भी लोग हैं 50 परसेंटाइल, 70 परसेंटाइल, 90 परसेंटाइल, सब कैट को क्रैक कर रहे हैं। पॉइंट इज व्हाट यू नीड टू डू इज आई वांट टू गेट इनटू अ गुड कॉलेज। सो पहली चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है, आप डिग्री से प्यार नहीं करेंगे, आप कॉलेज से प्यार करेंगे। बिकॉज डिग्री वोंट टेक यू एनीवेयर, कॉलेज विल। राइट, आज आईएम्स के अंदर 25-25, 30-30 लाख, 35 लाख, 40 लाख, 1 करोड़ का पैकेज भी मिलता है। क्यों? क्योंकि पॉइंट इज उन्हें पता है यहाँ का स्टूडेंट क्या पढ़ के आ रहा है। राइट, अच्छा, पॉइंट इज अब कई स्टूडेंट्स यहाँ डर जाते हैं। मैं कई स्टूडेंट्स का मैसेज देख रहा हूँ, सर आईएम्स में तो मेरा हो नहीं सकता, मेरे 10th के अंदर एग्जाम पेपर परसेंटेज है नहीं, मेरे 12th के अंदर परसेंटेज है नहीं। गाइस मुझे एक बात बताओ, आप सिर्फ इसलिए एमबीए करो और ऐसा कॉलेज ढूंढो। आज आपको अगर 15,000 से 20,000 की नौकरी मिल रही है, क्या एमबीए करने के बाद आपको 20,000 की नौकरी 70,000, 80,000 या 1 लाख रुपए दिलवा सकती है? अगर दिलवा सकती है, उस कॉलेज के अंदर जाके एमबीए कर लो। राइट, पॉइंट इज आप लोग डरे रह जाते हैं, मेरा 10वीं का मार्क्स, मेरा 12th का मार्क्स, मेरा ग्रेजुएशन का स्कोर। यू डोंट हैव टू टॉक अबाउट ऑल दोस थिंग्स। आपको सिर्फ ये देखना है, मेरा आरओआई निकलना चाहिए, मेरा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकलना चाहिए। क्या मैं 15-20,000 की नौकरी के बाद 2 साल में 1 लाख की नौकरी पहुंच पाऊंगा? तो एमबीए मत करो, मैं आज ही मना कर दे रहा हूं। बट अगर आपको पूरा कॉन्फिडेंस है कि 2 साल में या 3 साल में मैं 1 लाख रुपए नहीं पहुंचूंगा, तो मेरे ख्याल से 1 लाख रुपए 80,000 से स्टार्ट करना इज अ वेरी गुड डील। सो दैट इज द फर्स्ट थिंग व्हिच यू नीड टू अंडरस्टैंड। और यहां पर अब डिसाइड करो आप कि आइडल परसेंटाइल क्या होने चाहिए। राइट, सो अब ये आपको डिसाइड करना है। एंड मैं कुछ चीजें मैं आज आपकी मिथ जो ब्रेक करना चाहूंगा इस सेशन से। एक, ज्यादा प्रोफाइल 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 मत करो। आपकी जो गलतियां 10th 12th के अंदर हो चुकी हैं, आप 10th 12th वापस नहीं देने वाले और आप जेंडर चेंज नहीं करवाने वाले हैं। राइट, सो ये चीजें करवाने की जरूरत नहीं है। आप जो हैं जैसे हैं इस प्रोफाइल के साथ आगे बढ़िए। बिकॉज 3 या 4 आईएम्स अगर मैं छोड़ दूं और मैं 5 या 6 बी स्कूल छोड़ दूं, इसके अलावा बाकी के कॉलेजेस जो हैं वो आपका ये चीजों पे मैटर नहीं करेंगे। सो रादर देन थिंकिंग अबाउट व्हाट यू कैन नॉट, think about what you can. Just focus on your CAT percentile. That is my first thing which I want to address here. राइट, एंड आईएम्स के अलावा भी अच्छे कॉलेजेस हैं सेम लेवल के अंदर, मैं बात करूंगा। नाउ समवन इज टॉकिंग अबाउट व्हाट इज द आइडल टाइम टू स्टार्ट प्रिपरेशन। आइडल टाइम अगेन डिपेंड करेगा आप कैसे परसेंटाइल्स टारगेट कर रहे हैं। मैं कॉलेज की बात से ज्यादा आ गया हूं, आप क्या परसेंटाइल टारगेट कर रहे हैं। राइट, अब मैं पहले वर्बल की बात करूंगा, फिर अंकुर सर पॉइंट्स के ऊपर जाएंगे और फिर हम हमारी फॉर्मल प्रेजेंटेशंस के ऊपर जाएंगे। पहले मैं आप लोगों के क्वेश्चन सॉल्व करना चाहूंगा। एंड मैं बता रहा हूं आप सबके लिए इस सेशन को सुनते रहना, कुछ ना कुछ आइडल चीजें जरूर निकल के आएंगी। ये आधा घंटा में, ज्यादा टाइम हम लोग नहीं लेंगे, ये आधे घंटे से 40 मिनट वी विल मेक श्योर कि आप लोगों के लिए की अच्छी चीजें हो। राइट, सो जब किसी ने मेरे को बोला आइडल टाइम टू स्टार्ट प्रिपरेशन, क्या मैं 2 महीने के अंदर कैट कर सकता हूं, क्या मैं 4 महीने के अंदर कैट क्रैक कर सकता हूं? गाइस ये चीज आपको डिसाइड करनी पड़ेगी कैसे, और ये चीज स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करेगी। ये चीज स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करेगी। फॉर एग्जांपल मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं वर्बल को, बिकॉज मैं वर्बल पढ़ाता हूं इसीलिए। सो इफ आई टॉक अबाउट वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, स्टूडेंट क्या करता है? स्टूडेंट जाके अरुण शर्मा पकड़ लेगा, ठीक है। स्टूडेंट क्या जाएगा? स्टूडेंट जाके सीधा कैट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पकड़ना शुरू हो जाएगा। स्टूडेंट क्या करेगा? स्टूडेंट आगे जाके कैट की कोई भी बुक लेना सॉल्व कर देगा और यहां पर क्या करना शुरू करेगा? स्टूडेंट आरसी सॉल्व करेगा। आरसी के अंदर क्वेश्चन आए मान लो 10 में से 7 क्वेश्चन गलत करना शुरू करेगा, राइट, या 5 क्वेश्चन गलत करना शुरू करेगा और फिर बोलेगा आरसी डिफिकल्ट है। आरसी डिफिकल्ट लगना वाजिब है, लाजमी है, बिकॉज पॉइंट इज आपका रीडिंग के साथ कितना अटैचमेंट है वो भी तो देखो। हम बोलते हैं हमारा कैट के अंदर वर्बल इज वेरी टफ, आई एम नॉट डिनाइंग द फैक्ट। अगर इजी होता, अगेन मैं बोल रहा हूं, तो बहुत कुछ हो जाता, राइट। सो इजी तो नहीं है, तभी आज हम लोग इस बात को कर रहे हैं और तभी आप संडे को सेशन को सुनने के लिए आए हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट वर्बल एबिलिटी, आपको पहले एफिनिटी, आपको पहले प्यार करना पड़ेगा किससे? रीडिंग से। अगर आपका रीडिंग के साथ प्यार नहीं बन पाया, तब आप आगे जाके नहीं चल पाएंगे। राइट, फॉर एग्जाम्पल आई विल टॉक अबाउट लेट्स से लास्ट ईयर। मैं आपको एक छोटा सा स्क्रीन यहाँ पर शेयर करना चाहूंगा, 2 मिनट में आपका लूंगा यहाँ पर, आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग चीज है जो मैंने बनाया है। जस्ट अ मिनट। कुछ ज्यादा ही बने हुए हैं इसलिए
सो 2 मिनट दे दीजिएगा मेरे को आप। स्क्रीनशॉट्स I hope I can. If I can't, that's okay. Please, just a minute, guys. Because what I have done is I have taken all the links of from past year जो passages आए हैं, उसके मैंने आपको sources बताना चाह रहा था कि कहाँ से passage लिए गए हैं. If you see them, आपको थोड़ा idea आ जाएगा कि मुझे कितनी preparation करनी है. मैं इसीलिए आपको दिखाना चाह रहा था. But I don't think I can. That's the beauty when you have so many things on your this thing. Just a minute, and let me check images as well. Never mind. Shit happens. Okay, no issues. So I can't see that. That's okay. So मैं आपको बता देता हूँ. I can show it to you guys. That won't be a problem. So मैं इसके अंदर आपको क्या-क्या चीजें बता रहा था. If I talk about let's say last year CAT paper. अगर मैं last year CAT paper की बात करूँ, can you see my desktop? Yes, you can. अगर last year CAT के पेपर की बात करूँ, there was 2 passages. The genre was by slot. अभी specifically तीनों slot को मिला के मैं बात करूँगा. 3 slot के अंदर CAT का पेपर आता है. So there were passages from psychology. There were passages from psychology. Then there were passages from sociology. Then there were passages from science. Then there were passages from arts and literature. Then there were passages from history. Now the point is, then there were passages from biology as well. Now the point is that the student is not comfortable from this genre, right? So मैं preparation कैसे करूंगा, मैं RC कैसे solve करूंगा. So the first thing, yes Rishabh, I'll talk about your doubts as well. So the first thing which you need to understand is कि आपको रीडिंग की तरफ एफिनिटी डेवलप करनी पड़ेगी, तभी आप आरसी सॉल्व कर पाएंगे. और ये एफिनिटी अगर मैं बात करूंगा किस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो, मैं आपको एक छोटी सी चीज दिखा सकता हूं और अब मैं दिखा पाऊंगा शायद. जस्ट अ मिनट. That's too bad. Just a minute. I just show you the small planner so that it will help you to see. Here we go. Can you see the PPT, Ankur sir? Ankur sir, is PPT visible? Yes, sir. Yes, sir. It's perfectly fine. Now, if you see here, right, that's the PPT which I want to show you guys. It's what I was discussing with my students. It's a 6 months planner for BARs, right? So what you need to do, right? अब आपके लिए शायद 5 month planner हो जाएगा. So April के अंदर what I need to do. So अगर आप यहाँ पर देखोगे, मैंने यहाँ पर specifically mention किया. If you see here, guys, I hope you can, right? So passage solving के अंदर don't focus much on passage solving. आप अगर पहले दिन से passage solving की बात कर रहे हो, आप करना बंद करिए. मैंने लास्ट में क्या लिखा हुआ है, गो थ्रू द काइंड ऑफ क्वेश्चंस asked in CAT exam based on past year questions. You should not get into passage solving. आप देखिए किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, उससे आप अपनी रीडिंग स्किल्स बिल्ड ऑन करेंगे. ये मैं मेरे स्टूडेंट्स के लिए बना रहा था, राइट, और मैंने उन स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर रहा था कि आपको अप्रैल से लेकर नवंबर तक आपको क्या करना चाहिए, राइट. सो दिस इज हाउ यू नीड टू डू. रीडिंग के अंदर मैं क्या करूंगा, वोकैबुलरी के अंदर मैं क्या करूंगा, और मैं पैसेज सॉल्विंग के अंदर क्या करूंगा. दिस इज व्हाट वाज इन अप्रैल, राइट. मे के अंदर हाउ आई नीड टू चेंज. अगेन मैंने अप्रैल के अंदर भी अभी क्या लिखा हुआ है, डोंट फोकस ऑन पैसेज सॉल्विंग. यस, जो मैं क्लास के अंदर करवा रहा हूं बस उतना ही करो, पैसेज सॉल्विंग का भी ध्यान आपको ज्यादा नहीं देना है. अगेन द सेम थिंग इज गेट कॉन्फिडेंस इन कॉम्प्रिहेंशन एंड स्पीड बाय मे मंथ. आपको मे मंथ तक कॉम्प्रिहेंशन और स्पीड के ऊपर जाना पड़ेगा और कुछ भी नहीं, इससे आगे आपको जाने की जरूरत नहीं है. अगेन यहां पर आके गेट इनटू द बेसिक पैसेजेस सिमिलर टू व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट इन योर बैंकिंग एंड एनपेट एग्जामिनेशन. डोंट गो इनटू द कैट एज ऑफ नाउ. अगेन मूविंग ऑन टू जून, जब आप जून के अंदर जाएंगे, यू शुड गेट इनटू द डाइवर्स रीडिंग जॉनर. यू शुड गेट इनटू साइंस, यू शुड गेट इनटू एनवायरमेंटल, you should get into philosophy, you should get into science, you should get into history. ये सारी चीजें आपको करनी पड़ेंगी. और ये करने के लिए I have my Telegram group. Again at the end I'll share with you the link as well. So the read is basically I share a different kind of articles from the resources जो कि CAT जहां से क्वेश्चंस पूछता है. So CAT passages लेता है कहां से, CAT passages लेता है Aeon से.
कैट पैसेजेस लेता है स्मिथसोनियन से, कैट पैसेजेस लेता है साइकी से, कैट पैसेज लेता है हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू से। मैं यहां से जाके आपको भेजता हूं लिंक्स सो दैट यू कैन गेट द प्रॉपर रीडिंग। सो दीज आर द सोर्सेज टू रीड। ये सारी सोर्सेज है जहां से आप रीडिंग कर सकते हैं। बाय जुलाई व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू क्वांटिफाई द थिंग्स कि आज क्या करूंगा, वीक में क्या करूंगा, मंथ में क्या करूंगा, अगस्त एंड सितंबर के अंदर मैं क्या करूंगा। सो दिस काइंड ऑफ स्ट्रेटेजी विच यू नीड to follow as far as your CAT preparation is concerned, and typically talking about when you're talking about a CAT 99 percentiler, right? अगर आप इस तरीके का गोल्स वगैरह डिफाइन नहीं कर पाएंगे तब तक शायद आप आगे नहीं चल पाएंगे, और ये चीज आपको आगे बढ़ाएगा। और यही चीज आपको देखना है जब आप बात करते हो मैं कितना प्रिपरेशन करना है। अगर आपको लग रहा है कि आपकी रीडिंग अच्छी खासी है, मैं जनरलाइज स्टेटमेंट नहीं दूंगा, अगर आपको लग रहा है मेरी रीडिंग अच्छी खासी है, मैं सारी चीजें पढ़ता हूं, आई एम गुड विद ऑल दिस काइंड ऑफ जॉनर्स, तो मेरे ख्याल से आपको कम टाइम लगेगा। और अगर आपको लग रहा है नहीं सर ये तो आपने कैसी अलग दुनिया की बात कर दी, मुझे तो पता ही नहीं क्या होने वाला है, अगर आपके मन में ऐसे कुछ ख्याल हो आ रहे हैं, तो आई थिंक यू नीड टू स्टार्ट टेकिंग द स्टेप्स अकॉर्डिंगली। दिस इज स्पेसिफिकली फॉर वर्बल। अंकुर सर, ओवर टू यू। क्वेश्चन आया है बेसिकली दैट हाउ मच टाइम इज नीडेड एंड आइडल टाइम टू स्टार्ट प्रिपरेशन फॉर क्वांट्स, व्हाट शुड बी योर फंडा फॉर दिस, प्लीज। Ankur sir, am I audible? Ankur sir, am I audible? Okay, that's okay. So we don't have Ankur sir. Ankur sir, am I audible? आवाज आ रही है? Sir, am I audible? Yes. Sir, am I audible? Yes. Okay, sorry for the glitches. And sir, जो yes आपने जो बात बताया, that is the perfectly fine कि understand the approach, that is the very very important, right? For example, कोई भी questions आते हैं एग्जाम्स के अंदर, whatever you discuss कि पहले क्या प्रिपरेशन करनी चाहिए, डायरेक्ट जंप नहीं करना चाहिए, that is very very related. When we are discussing, for example, अभी IPL चल रही है, right? मैं IPL का वो related example आपको दूंगा कि जैसे कि अभी उमरान मलिक is the very very fastest bowler, right? अभी जो वो bowling कर रहा है is very fastest, right? And मैं एक राजस्थान के जो मैच था वो देख रहा था कि जॉस बटलर was playing very easily to him, right? बहुत easily उसको खेल रहा था। उसका रीजन है कि he knows how to tackle the pace, right? उसको पता है कि पेस को कैसे टैकल करना है, and that is why he is able to take the runs and everything, right? वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपको अप्रोच समझना, क्वेश्चंस की लैंग्वेज समझना, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? सो आपने बहुत सही बात यहाँ पे डिस्कस किया। आई ऑन द सिमिलर लाइन डेफिनेटली आई विल डिस्कस हियर कि गाइस whatever exams you are preparing, हम चाहे केट के एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं या नॉन केट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, नेवर जंप डायरेक्टली ऑन द क्वेश्चन। उनसे एक तो सबसे पहली बात डर लगता है गाइस कि ऐसा लगता है कि सर कैसे क्वेश्चंस आ जाते हैं जीवन के अंदर और उसको कैसे टैकल करेंगे, दैट इज डिफिकल्ट, राइट? एंड डेफिनेटली अपन स्टडी प्लानर की बात करें, सो क्वांट के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि सर अरिथमेटिक इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। बाय द वे there is the 5 parts जो मैंने बनाया हुआ है अकॉर्डिंग टू माय डेफिनेशन कि स्टूडेंट को क्वांट को कैसे प्रिपेयर करना चाहिए। एंड सबका प्यारा होता है बाय द वे क्वांट। आई कैन अंडरस्टैंड कि वर्बल के अंदर सबको थोड़ी डिफिकल्टी रहती है कि सर इंग्लिश से वैसे भी हमको प्यार नहीं है सर, अंग्रेज आके हमारे ऊपर यहाँ पे रूल करके गए थे एंड तब से सर हमको प्यार मोहब्बत नहीं है इंग्लिश के ऊपर। आई कैन अंडरस्टैंड। एंड क्वांट तो सर रामानुज जी से मैं बात करूं तो सब सर यहाँ पे हिंदुस्तान के अंदर वी नो एवरीथिंग कि क्वांट के अंदर हम कितना प्यार मोहब्बत करते हैं, राइट? सो क्वांट की मैं बात करूं, सो अकॉर्डिंग टू मी नंबर सिस्टम इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसका वेटेज रहता है लगभग 12 to 15% जिसका वेटेज रहता होगा। एंड अरिथमेटिक की मैं बात करूं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 45 से 50% अरिथमेटिक वुड बी ऑन योर पेपर, राइट? आपको लगता है कि बॉस आई एम नॉट गुड इन द अरिथमेटिक, दोस्त ऐसा होगा कि आई थिंक कैट को टैकल करना मुश्किल हो जाएगा। दोस्त जिस फाइट के अंदर उतर चुके हैं, जिस लड़ाई को हम लड़ने के लिए जा चुके हैं, देखो ये स्मॉल थिंग्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको पता होना चाहिए कि दोस्त मेरा दुश्मन कौन है और उसकी स्ट्रेंथ क्या है और उसकी वीकनेस क्या है। जैसे कि अभी सर बता रहे थे कि आप जैसे कि बोलेंगे कि सर आई एम नॉट गुड इन द रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ऑल टुगेदर, आप ऐसा नहीं बोल सकते, बिकॉज आप ऐसा नहीं बात कर सकते कि सर मेरा अरिथमेटिक वीक है। आपको एनालिसिस करना होगा, यू हैव टू प्रैक्टिस मोर एंड आपको उस कंक्लूजन तक आना होगा कि बॉस अरिथमेटिक के अंदर परसेंटेज मेरा बहुत अच्छा है, लेकिन शायद टाइम स्पीड डिस्टेंस के अंदर में थोड़ा हार्ड वर्क, मुझे जरूरत है और वर्क करने की, और मैं उसको इंप्रूव कर सकता हूँ, बिकॉज अरिथमेटिक 45 से 50% वेटेज देगा। एंड एल्जेब्रा
एंड जियोमेट्री डेफिनेटली वंडरफुल, वो भी लगभग 15 से 20% के आसपास वेटेज रहता है। मॉडर्न मैथमेटिक्स विच इज द 5th मॉड्यूल अकॉर्डिंग टू मी, एंड आई थिंक उसका जो वेटेज होगा वो 3 to 5% ओनली होगा, तो उसके अंदर ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। इफ यू वेन डायग्राम बहुत अच्छा नहीं है, सेट थियरी के अंदर यू आर नॉट गुड, दैट इज ओके, बट यस LRTI की मैं बात करूं तो डेफिनेटली सेट थियरी वुड बी देयर। सो आपको कहीं ना कहीं उसके अंदर भी अच्छा हो रहना होगा, बट पर्टिकुलर आई एम टॉकिंग अबाउट द कॉन्ट, तो डेफिनेटली आपको मॉडर्न मैथमेटिक्स से ज्यादा नहीं डरना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर लगभग हार्डली क्वेश्चंस आते हैं। इफ आई एम टॉकिंग 2020 जिसके अंदर 2 स्लॉट्स थे, 2021 जिसके अंदर 3 स्लॉट्स थे, राइट। मैं तीनों स्लॉट्स की बात करूं तो कॉन्ट के अंदर लगभग 2021 के अंदर 22 क्वेश्चंस आए थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एंड 2020 के अंदर 26 क्वेश्चंस आए थे, उसमें से 5 slots मिला के only 1 question was from the modern mathematics. So guys, this analysis I have done for you guys, and very soon I will share the Excel and on Telegram, और जहां जहां पे भी आप लोग हो, I will definitely share the Excel, and उन Excels के अंदर I have do analysis कि कौन से टॉपिक में से, कौन से सब्जेक्ट में से, कौन से पर्टिकुलर चैप्टर में से कितने क्वेश्चंस कौन से एग्जाम्स के अंदर पूछा गया है। सो 2019, 2020, 2021 का मैंने एनालिसिस कर चुका हूं, एंड बहुत जल्दी मैं 2014 से लेकर आगे तक का भी एनालिसिस करके दूंगा। इनसे आपको पता चलेगा गाइस, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं 99 परसेंटाइल की, राइट। आपको लगता होगा कि सर हिंदुस्तान के अंदर 2.5 लाख बच्चे टेट के एग्जाम दे रहे हैं, तो टॉपर्स क्या अलग करते होंगे। देखो, ओनली पढ़ाई से शायद आप इस लड़ाई को नहीं जीत पाएंगे, तो दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो आपको समझना होगा, कि कहीं ना कहीं आपको पता होना चाहिए कि कितना फोर्स मुझे कहाँ लगाना है। ओवर टू यू प्रशांत सर। Yeah, thank you. So, guys, what Ankur sir is trying to say is कि अगर जब आप 99 परसेंटाइलर की बात करते हैं कि मेरे को 99 परसेंटाइलर लेके आने हैं, वेरी इंपॉर्टेंट आपको जो ध्यान रखना है, दैट मुझे मेरे दुश्मन के बारे में पता होना चाहिए। I should know my enemy, और तुम्हारा एनिमी, या फिर तुम इसको पॉजिटिव वे में ले लो, तुम्हारा गोल इज योर कैट एग्जाम। तुम्हें पता होना चाहिए, व्हाट अंकुर सर इज ट्राइंग टू से, दैट लास्ट 10 इयर्स के अंदर हाउ द पेपर्स आर इवॉल्विंग, लास्ट 10 years how the questions are evolving, लास्ट 10 years के अंदर how the strategy is evolving, लास्ट 10 year के अंदर how the percentiles are evolving. So all this data will basically help you to understand, right? That is what you need to understand when we are talking about, you know, any examination or preparation level, right? थोड़ा सा हम लोग आगे चलते हैं, right? मैं इसके ऊपर ज्यादा बात नहीं करूंगा, MBA क्यों करना चाहिए, किस लिए करना चाहिए, बिकॉज मेरे ख्याल से इट इज वेरी क्लियर, आप लोग जहां सुनने के लिए आए हैं, और वेरी डाइवर्स जॉब अपॉर्चुनिटीज, राइट। इसके अंदर हर तरीके की जॉब अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं। सो MBA क्यों करना चाहिए, क्या करना चाहिए, किस लिए करना चाहिए, मैं इसके ऊपर ज्यादा बात नहीं करूंगा। आई विल स्टार्ट क्लियरिंग योर बेसिक मिथ कि सर ये प्रोफाइलिंग की आप जो बात कर रहे थे, राइट। मैंने बोला था मैं आपके मिथ सारे क्लियर करूंगा। सो गाइस, एक बात ध्यान करिए, यहाँ पर हम लोग ये 4 चीजों की बात करते हैं व्हेन इट कम्स टू प्रोफाइल: एकेडमिक, एक्स्ट्रा करिकुलम, वर्क एक्सपीरियंस, डाइवर्सिटी, राइट। पहली बात तो ये सारी चीजें हर स्कूल नहीं मांगता है। मैं अगर टॉप आईएम्स छोड़ दूं तो न्यू आईएम्स भी ये चीज नहीं मांगते हैं, राइट। सो द पॉइंट इज, आप पहली बात तो डरना बंद कीजिए, बिकॉज आज की स्थिति से आप उस न्यू आईएम्स या एफएमएसएस के ऊपर जाएंगे, एक्सएलआरआई के पास जाएंगे, एक्सआईएमबी पे जाएंगे, या जीआईएम पे जाएंगे, या एसडी पोकोनी पे जाएंगे, या ग्रेट लेक्स पे जाएंगे, ये कई चीजें, या जेबी एमआईएमएस पे जाएंगे, केजे सोमैया में जाएंगे, कोई भी लोग आपसे ये चीजें नहीं मांगने वाले। सो पहली बात, रिलैक्स, सिट बैक, रिलैक्स, इन चीजों का टेंशन खत्म करना शुरू करो। एंड द फर्स्ट थिंग व्हिच यू नीड टू एंश्योर इज start your preparation ASAP, as soon as possible. That is first myth which I want to clarify. Second myth, अभी जो मेरे पास क्वेश्चन आ रहा है, सर क्या मैं सेल्फ प्रिपेयर कर सकता हूं या नहीं? To be very honest with you, though I train students from last 12 years, मैं 12 साल से पढ़ा रहा हूं, मैंने कोविड के टाइम पे भी ऐसा ही पढ़ाया है, राइट। जैसा कि मैं अभी आप लोगों से बात कर रहा हूं, देयर इज नो लैक्यूना, देयर इज नो गैप। अब व्हेन वी टॉक अबाउट सेल्फ प्रिपरेशन, मेरे ख्याल से लास्ट 3 साल जो मैंने देखे हैं, और कोविड ने उसको और स्ट्रॉन्ग कर दिया है, ऐसा कोई चीज नहीं है जो आप यूट्यूब से ना कर पाए। मैं बहुत ही क्लियरली बोलता हूं, दो आई रन अ फुल फ्लेजेड दिस थिंग, ई कोचिंग दिस थिंग, बट द पॉइंट इज आई एम टेकिंग इट वेरी वेरी ओपनली दैट ऐसा कुछ भी चीज नहीं है जो आप नहीं कर सकते। बट द पॉइंट इज, प्रॉब्लम कहां पर आती है? प्रॉब्लम यहां पर आती है, जैसे अंकुर सर ने बोला, मॉडर्न मैथमेटिक्स का सिर्फ 2 क्वेश्चन आते हैं। अब ये मुझे बताने वाला वहां पर कोई नहीं है।
मैं क्या कर रहा हूं, YouTube पे शुरू कर दिया मैंने, या कहीं पर भी मैंने शुरू कर दिया, बिकॉज जनरली क्वांट्स फैकल्टी एंड अंकुर सर माइट बी एग्रीइंग विद मी दैट क्वांट फैकल्टी प्रोबेबिलिटी और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से ही शुरू करेंगे, बिकॉज द पॉइंट इज वहां से इफेक्ट आना शुरू हो जाता है, दैट इज वाओ फैक्टर, राइट। अब वहां से जब आप प्रिपरेशन करना शुरू करते हैं, आप लोग प्रोबेबिलिटी और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में खो जाते हैं। 2 क्वेश्चन है, छोड़ दो यार, छोड़ दो, कैसी बातें कर रहे हो। अब ये बताने वाला आपको सेल्फ प्रिपरेशन में कोई नहीं होता, राइट। सेल्फ प्रिपरेशन में आपको शायद ये नहीं बताने वाला कोई होगा कि मुझे, मैं आपको एग्जांपल देता हूं वर्बल के अंदर, राइट। सो वर्बल के अंदर मैं अभी स्टूडेंट से कुछ पीपीटीज बनवा रहा था, मैं आपको पीपीटीज दिखाना चाहूंगा दैट अगर आपको डिफरेंट डिफरेंट तरीके के पैसेजेस आ गए तो आपको क्या करना चाहिए। तो स्टूडेंट्स हैव मेड द पैसेजेस ऑन आर्ट्स, राइट। इफ यू कैन सी श्रेय, रवि, रोहन, राइट, इन लोगों ने आर्ट्स के ऊपर बनाया है पूरा पैसेज विच इज शेयर्ड विद ऑल द स्टूडेंट्स। अब ये आर्ट्स का उन्होंने पीपीटी बनाया जो सब स्टूडेंट्स के साथ शेयर किया गया, स्टूडेंट्स को आर्ट के जार्गन से कंफर्टेबल हो जाएंगे, राइट। किसी ने बनाया फ्रेंच रेवोल्यूशन के ऊपर, फ्रेंच रेवोल्यूशन क्या था, रेनाइसेंस पीरियड क्या था, कौन कौन से यहाँ पर पेंटर्स आए, पैब्लो पिकासो ने क्या किया। सो ऑल दिस थिंग्स, जब आप ये सारी चीजें करना शुरू करते हैं, आपका प्रिपरेशन उस लेवल पे आना शुरू हो जाता है, राइट। सो ये चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। एंड व्हेन व्हाई आई एम ट्राइंग टू शो ऑल दिस थिंग्स इज, मैं क्यों दिखाना चाह रहा हूं, क्योंकि ये चीज आपको कोई नहीं बता पाएगा। We are just mentors. मैं हमेशा बोलता हूं we are not faculties, we are mentors, right? आपको फैकल्टी की जरूरत नहीं है, आपको मेंटोर की जरूरत है। And what you want to understand is कि सर, अच्छा, कितने स्टूडेंट्स कैट का एग्जाम लिखते हैं, कोई बताएगा मेरे को क्विकली इन द चैट बॉक्स। कितने स्टूडेंट्स कैट का एग्जाम लिखते हैं, कोई बताएगा मेरे को क्विकली। हाउ मेनी स्टूडेंट्स गिव कैट एग्जाम? Hello, knock knock in the chat box, please quickly. Let me see if you guys are there or not. Rishabh is saying 2 lakhs. Others, all 67 students, क्या आप लोग वहां पर हैं? 2 से 3 लाख, 2 लाख, 2 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 2 लाख। ओके फाइन। कैट के स्टूडेंट्स लिखते हैं 20,000। कैट के स्टूडेंट्स होते हैं सिर्फ 20,000। सिर्फ 20,000 स्टूडेंट्स कैट का एग्जाम लिखते हैं। बाकी 1,80,000 स्टूडेंट्स सिर्फ फॉर्मेलिटीज कर रहे होते हैं और कुछ भी नहीं। यस, 2 लाख स्टूडेंट्स कैट का एग्जाम भरते हैं, बट 2 लाख स्टूडेंट्स तुम्हारा कंपटीशन नहीं है। तुम्हारा कंपटीशन 20,000 स्टूडेंट्स से है। तो पहला ये दिमाग के अंदर ठान लो। क्यों? उसका रीजन ये है, पहले दिन फॉर एग्जाम्पल ऋषभ आके मुझे बोलता है मुझे IIM अहमदाबाद जाना है। मेरे को आप नॉन कैट एग्जाम्स की बात मत करो, मुझे IIM अहमदाबाद जाना है, बस खत्म। ये बात होती है मेरी ऋषभ से अप्रैल के अंदर, ठीक है। अप्रैल के बाद धीरे धीरे आता है जून। जून के अंदर ऋषभ ये बोलता है सर एक बात बताइए, न्यू IIMs में जाने के लिए क्या मेरा 92 परसेंटाइल पे हो जाएगा? दूसरा क्वेश्चन। धीरे धीरे गारवा आगे बढ़ता है, आता है जुलाई। जुलाई के अंदर ऋषभ मेरे से पूछता है सर मैंने पहले क्लास के अंदर तो आपको इग्नोर कर दिया था, पर मुझे नॉन कैट एग्जाम्स के ऊपर डिटेल में बताइए मुझे कौन कौन से फॉर्म फिल करने चाहिए थे। एस्पिरेशन देखना ऋषभ का कैसे चेंज हो रहा है। उसके बाद आता है अगस्त। अगस्त के अंदर ऋषभ क्वेश्चन पूछता है कि सर नॉन कैट एग्जाम्स के अंदर अगर मैं जाऊं तो स्नैप के अंदर, मतलब सिम्बायोसिस के अंदर मैं SIBM तो नहीं हो पाएगा, क्या मैं SC MHRD ले लूंगा? फिर आता है सितंबर और ऋषभ डिसाइड करता है कि मैं कैट का एग्जाम भरूं भी सही या नहीं। और फिर आता है अक्टूबर, जहां ऋषभ ये सोच चुका होता है कि मेरे साथ ग्रेजुएशन के साथ साथ नहीं होगा, मैं ड्रॉप करूंगा। गाइस, डू यू एग्री विद दिस और नॉट? All 67, 68 students attending this session, is it making sense? Right? So that's why I am telling you, आपकी लड़ाई सिर्फ 20,000 स्टूडेंट्स के साथ है, और उस 20,000 स्टूडेंट्स के लिए यहां पूरा मोटिवेशन रखने के लिए, and that's where you need mentors. ये आपको YouTube नहीं करवा पाता है, और ये चीज आपको बाकी चीजें नहीं करा पाती हैं, और ये चीज आपको करना पड़ेगा। And when we get into the live classes, मेरे लाइव क्लासेस के कई स्टूडेंट इस सेशन को सुन रहे होंगे और वो शायद इस चीज से एग्री करेंगे। मेरी लाइव क्लासेस के अंदर शायद हम 15 मिनट इसी चीज पे बात कर रहे होते हैं कि रीडिंग क्या करना है, श्रीलंका के क्राइसिस के पीछे रीजन क्या है, अगर श्रीलंका क्राइसिस के ऊपर कुछ क्वेश्चन आ जाएगा तो मेन आइडिया क्या है। सो जब मैं ये चीजें बातें करूंगा, जब मैं बारी बारी आपको बोलूंगा सॉल्व करो, जब मैं बारी बारी आपके पीछे पड़ूंगा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, जब मैं बारी बारी आपके यहाँ दिल पे आघात पहुंचाऊंगा कि बेटा नहीं हो पाएगा ऐसे,
तब जाके शायद आप बात करेंगे। अभी थोड़ी देर पहले इसी सेशन के अंदर मेरे 2 स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी लाइव क्लास अटेंड करते हैं मेरी, वो आ गए थे। मैंने उनको क्या बोला, बेटा आप लोगों के लिए नहीं है, अपना टाइम वेस्ट मत करो, सॉल्व करो, अदरवाइज वो अपना 2 घंटा वेस्ट करते हो। और शायद यही चीज हम लोग ओवर कंटेंट की वजह से वेस्ट करते हैं। एंड आपका अगेन लड़ाई सिर्फ और सिर्फ 20,000 स्टूडेंट्स के हाथ है। अगर आपने लड़ाई आज से शुरू कर दी, जून के बाद तो पूरी जनता आएगी लड़ाई करने के लिए, राइट? सो ये चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सो व्हेन वी टॉक अबाउट, यस अंकुर सर, ओवर टू यू। सो इसके अंदर जो आई थिंक सर आपने जो बात बताया उसका बहुत रिलेटेड एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि हमारा स्टूडेंट का प्रॉब्लम क्या होता है। देखो एक दिन मैं भी स्टूडेंट था ना, प्रॉब्लम क्या है कि व्हेनेवर वी आर स्टडिंग, राइट, कॉलेज के अंदर होते हैं हम, सेमेस्टर के अंदर होते हैं, सेमेस्टर की एग्जाम होती है, या तो कभी भी ऐसे कोई मोटिवेशनल या तो कोई इन्फॉर्मेटिव सेशंस होते हैं, राइट। तब स्टूडेंट क्या करते हैं, या तो मैं क्या करता था स्पेशली, कि हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी सेमेस्टर चालू होता है उसके पहले दिन, ट्राई टू अंडरस्टैंड गाइस, जितने भी लोग सुन रहे हैं मेरी बात को, आप रिलेट करने की कोशिश करना कि हर सेमेस्टर के पहले दिन हम ये जरूर सोचते, भगवान के सामने मंदिर में जाके खड़े रह जाते और भगवान के सामने में इस प्रार्थना करते कि हे भगवान, इस सेमेस्टर से मैं पहले दिन मेहनत जरूर करूंगा। गाइस जितने भी स्टूडेंट सुन रहे हो, गाइस गाइस एम आई टॉकिंग हियर सेंसिबल बात मैं बता रहा हूं कि आपको लग रहा है कि मैं सेंसिबल बात कर रहा हूं, प्लीज रिप्लाई इन द चैट बॉक्स कि हर एग्जाम के, हर सेमेस्टर के पहले दिन मंदिर के सामने हम खड़े रहते, भगवान से प्रार्थना जरूर करते हैं कि हे भगवान, इस सेमेस्टर में मैं पहले दिन से मेहनत करूंगा। लेकिन दोस्त रिप्लाई इन द चैट बॉक्स, क्या आप ऐसा कर पाए हो? नहीं कर पाते हो। जो सर यहाँ पे बताने की जो बात कर रहे थे कि 2 लाख स्टूडेंट्स, मोर देन 2 लाख स्टूडेंट फिलिंग द फॉर्म्स, एंड उसमें से 20,000 स्टूडेंट ओनली अप्लाइंग द केट एग्जाम प्रॉपरली, उसका रीजन है कि दोस्त लड़ाई चालू कर देना बहुत इजी है। जब रविंद्र जाडेजा कोई भी क्रिकेटर 20 करोड़ के अंदर बिकते हैं दोस्त, हमारे अंदर भी गर्मी आ जाती है कि सर क्रिकेट खेलना चालू कर देते। ट्राई टू अंडरस्टैंड दोस्त, विराट कोहली एवरी डे 365 डे मॉर्निंग में 5 o'clock उठ के क्रिकेट के ग्राउंड के अंदर पहुंच जाते हैं, 365 डे मेहनत करते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्या उनके मामा के घर पे शादी नहीं आती होगी? आपको लगता होगा कि सर मेरा फंक्शन से, मेरा कुछ न कुछ वजह से आप बहाना बनाते हो, अलार्म अपने आप बजता रहता है, हम 12 बजे बेडरूम में से बाहर आते हैं। दोस्त ऐसे इस लड़ाई को हम नहीं जीत पाएंगे। ट्राई टू अंडरस्टैंड, आज का सेशन सुनने के बाद, आपको हमारी बात सुनने के बाद आपके अंदर एग्रेशन जरूर आएगा, आप बीच में आने वाले को बोलेंगे हट जा, तोड़ देंगे, फोड़ देंगे, 4 दिन के बाद आप वापस शांत हो जाएंगे। कैमरा के पीछे आपकी स्माइल में पढ़ पा रहा हूं, क्योंकि ये चीज हर कोई करता है। 4 दिन के बाद आपकी आग शांत हो जाएगी। आपको रोज अंकुर सर चाहिए जो उठा के, आपको रोज प्रशांत सर चाहिए जो उठा के इस आग को वापस जलाए दोस्त। एंड दैट इज व्हाट मेंटर्स रिक्वायरमेंट, राइट। बाकी कोई, आपको हिंदुस्तान के हर बच्चे को आता है 1 + 1 = 2 करना, किसी को मेंटर की जरूरत नहीं है दोस्त। इज इट यस प्रशांत सर। Yes. So when we talk about the B schools, right? मैं थोड़ी देर पहले जो myth clear करने की बात कर रहा था, IIMS, अच्छी बात है, IIM टारगेट करो, IIM अहमदाबाद ही टारगेट करो, मना नहीं कर रहा हूँ, बट देन हमें ये भी देखना चाहिए हमारी एस्पिरेशन एंड माय रियलिस्टिक थिंग्स, राइट? अगेन दिस विल बी द सेकंड थिंग व्हिच यू नीड टू अंडरस्टैंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, राइट? और मैं क्यों बताना चाह रहा हूँ, लेट्स टॉक अबाउट अ 20 लाख पर पैकेज, 20 लाख प्लस लाख पर एनएम के पैकेजेस, राइट? A, B, C is okay. Right, we have SP Gens, we have FMS, and we have XLRI, BM and HR as well. So apart from IIMs, फर्स्ट क्लस्टर के अंदर तुम्हारे पास 3 ये भी हैं ना। थोड़ा सा आगे देख लेते हैं, 17 से 20 लाख रुपए के अंदर, 17 से 20 लाख के अंदर अगर आप देखोगे MDI, 17 से 20 लाख के अंदर अगर आप देखोगे IIFT, 17 से 20 लाख के अंदर इंजीनियर्स के लिए IIT बॉम्बे, जमनालाल बजाज फ्रॉम महाराष्ट्र सिटी, निटी मुंबई अगेन फ्रॉम इंजीनियर्स, इंदौर, कोईकोड, राइट, NMIMS, only the Mumbai one, right, the core campus, right, the core program. So 15 से 17 लाख रुपए, अगेन 15 से 17 लाख रुपए में IIMS के अलावा भी अदर कॉलेजेस हैं, 13 से 15 लाख रुपए के अंदर भी IIMS के अलावा अलग कॉलेजेस हैं। तो पहली बात ये खुद वेबसाइट पे जाके करें, आप वेबसाइट पे विश्वास रखें, लोगों की, मेरे जैसों की कहीं सुनी बातों पे ना आए, ठीक है? नाउ सिलेक्शन प्रोसेस बी स्कूल्स का क्या होता है? सो बी स्कूल्स का सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है? पहला, आप कैट का एग्जाम देंगे, कैट के एग्जाम के बेस पे कॉल आता है, और कॉल जो है, कई जो आईएम्स हैं वो प्रोफाइल बेस्ड कॉल देते हैं जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं, बाकी नॉर्मल जो लोग हैं वो एकदम परसेंटाइल के बेस पे नॉर्मल जो बी स्कूल्स हैं वो कॉल देते हैं, उसके बेस पे आपके वैट प्रोसेस होता है और आपका पीआई होता है। नाउ अब आप इस एक्सेल को ध्यान से देखिएगा, राइट? अब यहां पर अगर मैं बोल रहा हूं, लोग बोलते हैं 10th में मार्क्स नहीं है, 12th में मार्क्स नहीं है, नहीं हो पाएगा, ठीक है? 99.6 परसेंटाइल इज अ कट ऑफ परसेंटाइल। पहले तो बच्चे तू ये लेके आ, पहले तो तू ये लेके आ। सेक्शनल कट ऑफ है, यस, तीनों का सेक्शनल कट ऑफ है 80 80 80।
तो यहां पर भी तीनों के अंदर 95 95 95 लेके आना, यहां पर 100% आई लेके आना, मैं देखता हूं कौन सा IIM कॉल नहीं देगा। सो इन चीजों के ऊपर ज्यादा मत जाओ। अच्छा पॉइंट इज, मान लो नहीं आया, मान लो नहीं आया, ठीक है, और तो भी तुम 99.9 पे बैठे हो, तुम्हारा 10th और 12th की वजह से तुम चले गए, ठीक है, मैं मान लो चला गया 10th और 12th की वजह से, ठीक है, मेरा कैट का स्कोर अच्छा है, तो अहमदाबाद में तो एडमिशन के चांसेस हैं, फ्रेशर को ज्यादा एडमिशन देता है क्योंकि वर्क एक्सपीरियंस को कोई वेटेज ही नहीं है अहमदाबाद के अंदर। हम क्या सोचते हैं, वर्क एक्सपीरियंस का तो बहुत वेटेज है, वर्क एक्सपीरियंस नहीं हो तो IIM लेगा नहीं। बैंगलोर देगा, बैंगलोर का 8% वेटेज है, यहां पर फायदा होगा, या टेस्ट स्कोर का सिर्फ 80% वेटेज है। मेरा CA students work experience of 5 years, a CA student at 85 percentile got a call from IIM Bangalore, he converted और वो IIM Bangalore के अंदर MBA करके निकल गया, राइट, उसको अहमदाबाद कोलकाता ने कॉल नहीं देगा, ठीक है। SP Jain अगेन 85 पे प्रोफाइल बेस्ड कॉल दे देता है, 98 पे, यहाँ कुछ नहीं है भैया, कुछ नहीं है, तो दो ना 98% है, लाओ ना SP Jain पे, जाओ ना यार। FMS ने इस बार से 10th और 12th शुरू कर दिया है, राइट, तो FMS में चलो कंसीडर नहीं भी करता हूं, XLRI में जाओ ना यार, XLRI HR में जाओ। तो अगर पॉइंट इज, हमें क्या लगता है, हम एक अपनी अवॉइडेंस, हमारे चारों तरफ हम एक वॉल क्रिएट कर लेते हैं, मेरा इसलिए नहीं होगा। MDI 100% टेस्ट स्कोर, IFT दिल्ली 100% टेस्ट स्कोर, MDI HRM 100% टेस्ट स्कोर, जमनालाल बजाज 100% टेस्ट स्कोर। इंदौर के अंदर नहीं जाना मेरे को, मेरी पुरानी गलतियां हो गई, नहीं जाऊंगा इंदौर, मेरे लिए कट है हमेशा के लिए, तो मैं इस तरीके से एग्जाम की प्रिपरेशन करूंगा। सो आपके पास सिर्फ 20,000 स्टूडेंट्स हैं, मैं अगेन बोल रहा हूं, आपके पास सिर्फ 20,000 स्टूडेंट्स हैं और आपको इस हिसाब से प्रिपेयर करना चाहिए। इफ आई टॉक अबाउट एग्जाम सेक्शन, यस अंकुर सर, ओवर टू यू। सो मैं यहाँ पे सर 2-3 पॉइंट और ऐड करना चाहूंगा कि व्हेनेवर वी आर डिस्कसिंग अबाउट द केट एंड सर एकेडमिक प्रोफाइल एंड एवरीथिंग, राइट, जो आप बात कर रहे हो कि सर पास्ट के अंदर जो भी पाप हो चुका है दोस्त, उसका ना आप कुछ कर सकते हो, ना मैं कुछ कर सकता हूँ, राइट, एंड जेंडर डाइवर्सिटी की जो बात है वो हमारे हालत हमारे कंट्रोल में है नहीं, राइट, हम पैदा हो गए उसको हम कुछ चेंज नहीं कर सकते, राइट। यहाँ पे ट्राई टू अंडरस्टैंड गाइस, मैंने ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट मेरी लाइफ के अंदर देखे हैं कि जिसको 95 प्लस परसेंटाइल 10th एंड 12th के अंदर रिस्पेक्टिवली होने के बाद भी केट के अंदर अच्छा स्कोर नहीं आने की वजह से वो लोग अच्छी IIMs को टच नहीं कर पाते। ट्राई टू अंडरस्टैंड, मेरी बात को आप समझने की कोशिश करना कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि गाइस आपके पास बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे होंगे जिसके दिमाग के अंदर या तो दिल के अंदर ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आप शायद क्वेश्चंस पूछ नहीं रहे हो, बट शायद आपके अंदर एक क्वेश्चन होगा कि सर मुझे MBA कहां से करना चाहिए, सर मैं HR से करूं, सर मैं मार्केटिंग से करूं, मैं फिनांस से करूं, कहां से करूं, राइट। कई लोगों के अंदर एक क्वेश्चन होगा कि सर आई एम फाइनेंशियली नॉट गुड, तो सर IIM की फीस क्या होगी, या कोई कॉलेज के अंदर मुझे एडमिशन लेना है तो मैं फाइनेंशियली कैसे इसको प्रिपेयर कर पाऊंगा, राइट। या तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आपके पास होगा, मैं सबका आंसर आपको एक लाइन में देना चाहूंगा कि गाइस सबसे पहले जो आपकी एग्जाम्स आती है दैट इज द केट। आप अभी जो लड़ाई लड़ रहे हो इसके अंदर नवंबर महीने के अंदर आपकी केट की एग्जाम आएगी, तो दोस्त यहाँ पे आप एक बात मार्क करना कि मैंने और प्रशांत सर ने यहाँ पे ग्रुप डिस्कशन, पर्सन इंटरव्यू, रिटन एबिलिटी टेस्ट, उसकी भी हम बात नहीं कर रहे। ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हम लोग करते क्या है कि सर केट के एग्जाम्स को हम साइड में छोड़ देते हैं, हम डिस्कस करते हैं कि सर वर्बल एबिलिटी में क्या, रिटन एबिलिटी में टेस्ट में क्या करें, सर GDPI में क्या करें, सर मैं कौन सी कॉलेज में एडमिशन लूं और कौन सी कॉलेज में एडमिशन ना लूं। गाइस ये सारी चीज शायद आज सोचने का वक्त नहीं है। ट्राई टू अंडरस्टैंड आपके कंट्रोल में क्या है, ओनली एंड ओनली केट का स्कोर। आप केट का रिजल्ट ला सकते हो, आपको केट के अंदर मेहनत करके 10 परसेंटाइल लाना है और उसके अंदर आपको कोई कट ऑफ नहीं चाहिए, कोई 10th-12th का परसेंटेज नहीं चाहिए, कोई आपको फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। यू रिक्वायर ओनली एंड ओनली योर डेडिकेशन एंड योर हार्डवर्क। केट के अंदर रिजल्ट आ गया दोस्त, बाकी सारी बात हिंदुस्तान के अंदर हमारे जैसे महात्मा बहुत अवेलेबल है दोस्त, आपको घर आके ज्ञान दे जाएंगे। ट्राई टू अंडरस्टैंड, जो सर बोलने की कोशिश कर रहे थे कि IIM आपको कॉल करेगी सामने से, आपका डेटा वहां पे जाएंगे, आपको टेंशन नहीं लेना है कि मेरा परसेंटेज क्या है। आप 10th का रिजल्ट भी देने वाले हो, 10th-12th का रिजल्ट भी आप सबमिट करने वाले हो, राइट। तो आपको जो ध्यान रखना है दैट इज ओनली एंड ओनली केट का स्कोर। जो आपकी अगली लड़ाई है, अर्जुन की तरह सिर्फ मछली की आंख दिखनी चाहिए दोस्त, हमको मछली भी नहीं देखनी है। इज इट क्लियर एवरीवन? यस प्रशांत सर। ओके, सो एक चीज जो आ रही है, एक क्वेश्चन जो आ रहा है, बट सर दीज कॉलेजेस हैव हाई फीस एक्सेप्ट FMS। गाइस वहां पर ROI भी वैसा ही है। मैं इसलिए आपको बोल रहा हूं, जब भी आप कोई डिसीजन लेते हैं, जो मैं एटलीस्ट मेरे स्टूडेंट्स को बोलता हूं, आप डिसीजन हमारे से बिना पूछे नहीं लेंगे, राइट। आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी वैसा ही देखना है भैया, राइट। आप सोचिए, IIMs के अंदर मान लो फीस 25 लाख रुपए है, अगर 25 लाख रुपए देने की हिम्मत वहां सब स्टूडेंट्स की होती तो वो बाहर बैठे होते।
वो अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज में जा रहे होते। कैट का एग्जाम तो उल्टा ज्यादा टफ है, इतना कंपटीशन है, वो जीमेट देके बाहर निकल चुके होते। राइट, सब लोन में पढ़ते हैं मेरे दोस्त। राइट, तो ऐसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बिकॉज पता है कि मैं अच्छे कॉलेज में जाऊंगा तो रीपे कर पाऊंगा, बाकी तो फिर 6 लाख रुपए रीपे करने में भी दिक्कत हो जाएगी। राइट, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है धर्मेंद्र, आई होप आई एम क्लियर। राइट, सो इफ आई टॉक अबाउट कैट सेक्शन में थोड़ा सा आपको परसेंटाइल्स के ऊपर लेके चलता हूं बिफोर द सिलेबस। राइट, दैट हाउ द परसेंटाइल्स आर प्लेस्ड। राइट, इफ आई टॉक अबाउट VARC जो कि आपका पहला सेक्शन होता है, देन आई एम गेटिंग इनटू LRD है जो कि आपका दूसरा सेक्शन होता है, और तीसरा मैं आपको बता रहा हूं क्वांटिटेटिव सेक्शन। राइट, मैं लास्ट ईयर की बात करता हूं। सो VARC के अंदर देयर वर नंबर ऑफ क्वेश्चंस 24, LRDI के अंदर देयर वर 20 एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के अंदर देयर वर 22। सो इट वाज अ 66 क्वेश्चन पेपर, 40 मिनट्स, 40 मिनट्स एंड 40 मिनट्स। ठीक है, इन तीनों के अंदर 40 मिनट्स मिलते हैं। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट 99 परसेंटाइलर, लेट्स टॉक अबाउट 95 परसेंटाइलर, लेट्स टॉक अबाउट 90 परसेंटाइलर। इससे नीचे अभी नहीं जानते। ठीक है, अभी हम इन्हीं तीनों की बात करते हैं। ठीक है, VARC के अंदर 24 में से द मोमेंट यू हिट क्लोज टू अराउंड 15 to 16 क्वेश्चन, नेट करेक्ट 99 परसेंटाइल। If you hit close to around 13 to 14 questions, 95, and the moment you hit close to around 11 questions, 90 percentile. Not even 50%, and you are hitting 90 percentile. LRDA 99 percentile 10 questions, 95 क्लोज टू अराउंड 7 से 8 क्वेश्चंस, और 6 क्वेश्चन के आसपास आपका 90 परसेंटाइलर आ जाता है। 6 क्वेश्चन सही कर सकते हो या नहीं? 6 क्वेश्चन सही कर सकते हो या नहीं? आई एम अ वर्बल ट्रेनर, मैं हमेशा बोलता हूं। ठीक है, सो हमारे पास ज्यादा वैसे प्रेशर होता नहीं। सो VARC गॉट 99, दैट वाज ओके। LRDI के अंदर डूइंग नथिंग, एक सेट लेके बैठ गए, एक सेट हो गया, 6 क्वेश्चन सही हो गए, 90 परसेंटाइलर। राइट, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 99 परसेंटाइलर के लिए क्लोज टू अराउंड 12 to 13 क्वेश्चंस, 99। राइट, 10 से 12 क्वेश्चंस यहां पर आ जाएगा, राइट, 95 परसेंटाइल, और 8 से 9 क्वेश्चन यहां पर आ जाएगा 90 परसेंटाइल। सो गाइज अंडरस्टैंड, पहली हिट या 90 परसेंटाइल की अगर मैं बात करूं, आई एम टॉकिंग अबाउट 26 क्वेश्चंस आउट ऑफ 36 टू हिट 90 परसेंटाइल। 1/3 of the paper will get you 90 परसेंटाइलर। ला सकते हो या नहीं? Yes or no guys? So 99, 95, 90 परसेंटाइलर। अब अगर मैं इसकी और डिटेलिंग के अंदर जाऊं, मैं इसकी और डिटेलिंग के अंदर वर्बल के अंदर जाऊं, और फिर अंकुर सर क्वांट्स के अंदर लेके जाएंगे। मुझे 11 क्वेश्चन नेट करेक्ट करने हैं। मेरे पास 4 पैसेजेस होते हैं इनटू 4 क्वेश्चन ईच। आई एम टॉकिंग अबाउट 16 क्वेश्चंस। मैं 16 क्वेश्चन की बात कर रहा हूं आरसी के अंदर। मैं 16 क्वेश्चन आरसी के अंदर अगर बोलूं, 4 पैसेजेस हैं, मैं 4 पैसेजेस के अंदर अगर 2 2 2 2 या मैं 3 पैसेजेस अटेंड करके अगर मैं 2 2 2 क्वेश्चन भी सही कर दूं, जिंदगी का पूरा टाइम लगा दूं 30 मिनट के अंदर 3 पैसेज, राइट, तो भी मैं 6 पैसेज यहां से ला सकता हूं। थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा, एक के अंदर 3 करना पड़ेगा, तो भी मैं 7 क्वेश्चन यहां के लेके आ सकता हूं। और बाकी के पैराजम्बल्स वगैरह में से 8 में से 4 क्वेश्चन लेके आ जाऊं, तो मैं 90 परसेंटाइलर हिट कर सकता हूं। 3 पैसेजेस, सारे मत पढ़ो। राइट, LRDI फॉर दैट मैटर, इस बार LRDI के अंदर देयर वर DI डेटा इंटरप्रिटेशन के अंदर 2 सेट थे, एक 6 क्वेश्चन का, एक 4 क्वेश्चन का। LR के अंदर 2 सेट्स थे, एक 6 क्वेश्चन का, एक 4 क्वेश्चन का। ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। DI का एक सेट उठा लो, 6 क्वेश्चन सॉल्व कर लो, 90 परसेंटाइलर। 40 मिनट के अंदर जिंदगी सिर्फ इसी पे डिवोट करो, तो भी अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। राइट, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की अगर मैं बात करूं, अंकुर सर प्लीज ओवर टू यू, कैसे लेके आएंगे सर 90 परसेंटाइलर हमारे लिए? यस, इसके अंदर देखो सर जो डिस्कस कर रहे हैं, डेफिनेटली इट इज अ वेरी गुड एनालिसिस जो हर स्टूडेंट को देखना चाहिए। राइट, यहाँ से मैं आपका इस सेशन में जितने भी स्टूडेंट सुन रहे हैं, मैं आपका यहाँ पे नजरिया बदलाऊंगा। राइट, मैं कई बार स्टूडेंट को सबसे पहला क्वेश्चन पूछता हूँ कि बॉस आपका जो टोटल क्वेश्चन आते हैं 66, मैं लास्ट ईयर की बात कर रहा हूँ, राइट, एंड आपको जो टोटल टाइम मिला था 120 मिनट्स, राइट। सो आप मुझे रिप्लाई कर सकते हो चैट बॉक्स के अंदर कि पर क्वेश्चन हाउ मेनी टाइम्स यू आर गेटिंग, पर क्वेश्चन आपको कितनी मिनट्स मिलती है गाइस। रिप्लाई इन द चैट बॉक्स एवरीवन। 66 क्वेश्चन, 120 मिनट्स पर क्वेश्चन, हाउ मेनी मिनट्स आर यू गेटिंग गाइस? रिप्लाई इन द चैट बॉक्स। Manchi is saying 2 minutes, Omkar is saying 1 minute. गाइस अंकुर सर का क्वेश्चन समझ गए आप शायद। 66 क्वेश्चंस हैं और 120 मिनट्स हैं। सर लक्ष्य इज सेइंग 1.8 मिनट्स, प्रदीप इज सेइंग 1.6, विवेक इज सेइंग 1.8, ओम इज सेइंग 1.5।
गाइस यहाँ पे देखो, जो भी आपका रिप्लाई कर रहे हैं, मैं आपकी भावनाओं को समझ पा रहा हूँ, ट्राई टू अंडरस्टैंड दोस्त। ये सभी का आंसर गलत है, क्योंकि मैं क्वांट का फैकल्टी हूँ। आपको लगता होगा कि सर सीधी बात है 120 डिवाइड बाय 66 कर दो आपका आंसर आ जाएगा। दोस्त गलत कर रहे हो। ट्राई टू अंडरस्टैंड। सबसे पहली मिस्टेक, जो आप केट की लड़ाई लड़ रहे हो, तो आप 2.5 लाख बच्चों में से हो जो आप 120 डिवाइड बाय 66 कर रहे हो। आपको 20,000 स्टूडेंट बनना है दोस्त। ट्राई टू अंडरस्टैंड। हमको जय माता जी नहीं करना है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दोस्त। यहाँ पे माइनस मार्क आ जाएंगे गाइस, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। आपको ओनली एंड ओनली 99 परसेंटाइल लाना है। प्रशांत सर ने आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है बॉस, 15 क्वेश्चन इन द VRC, 10 इन द LRDI एंड 12 to 13 क्वेश्चन इन द क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। आप इसका टोटल कर लीजिए दोस्त, तो लगभग 40 क्वेश्चन आपको करना है 66 में से, एंड 40 क्वेश्चन डिवाइड बाय 120 मिनट गाइस। नाउ योर आंसर विल बी विथ यू। आपका जो आंसर होगा कि 3 मिनट्स पर क्वेश्चन दोस्त। ट्राई टू अंडरस्टैंड। आप 1.8 मिनट से डायरेक्ट 3 मिनट्स पे आ गए हो। आपको पता होना चाहिए कि मुझे कौन सा क्वेश्चंस करना है और कौन से क्वेश्चंस को छोड़ देना है। आपको मेंटोर की यहाँ पे जरूरत पड़ेगी। क्वेश्चंस छोड़ने में आपको हेल्प लगेगी कि सर क्वेश्चंस की लैंग्वेज देख के, क्वेश्चंस का डेफिनेशन देख के, क्वेश्चंस को पढ़ के हम समझ जाएंगे कि इस क्वेश्चंस को मुझे टच नहीं करना है। सचिन तेंदुलकर हर बॉल को नहीं खेलता है दोस्त, वो भी कई बार अपने आप को कंट्रोल कर जाता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दोस्त। ट्राई टू अंडरस्टैंड। हमको उस क्वेश्चंस को छोड़ देना है। तो हमको पर क्वेश्चंस कितने मिनट मिलेगी? आज के बाद आपको कोई भी क्वेश्चंस पूछते हैं तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? 3 मिनट। गाइस यूटिलाइज दैट 3 मिनट पर्टिकुलर, राइट? पूरा 3 मिनट्स का यूज करो। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की जो मैं बात करूं तो दोस्त, इसके अंदर आपको अरिथमेटिक एंड जियोमेट्री, दो चीज मैं आपको बता रहा हूं, दो चीज आप कर लो दोस्त, आप आराम से 90+ परसेंटाइल को टच कर जाएंगे। 90+ परसेंटाइल टच कर जाएंगे, सिर्फ अरिथमेटिक एंड जियोमेट्री कर लो, राइट? बाकी यू कैन सी, अपन सेपरेट इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे क्लास के अंदर। मैं बहुत बार डिस्कस करता हूं क्वांट के अंदर सेपरेटली, वहां पे वी विल डिस्कस कि अरिथमेटिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड यस उसको आप कर लेंगे दोस्त, जीवन धन्य हो जाएगा। कई लोग को लग रहा है कि सर मेरा जियोमेट्री आई एम नॉट गुड, बॉस अलजेब्रा कर लो। अच्छा, ऐसा मत यहाँ पे सोचना कि सर मैं अरिथमेटिक निकाल देता हूं, नहीं होगा दोस्त, राइट? अरिथमेटिक के साथ या तो हमको जियोमेट्री लेना है या तो अलजेब्रा लेना है, राइट? हम डोलो, फॉर एग्जांपल बुखार आ गए, डोलो खाएंगे, नो प्रॉब्लम, एसिडिटी की दवा साथ में रखनी है, बस दैट्स इट, और कोई टेंशन नहीं लेना है। अरिथमेटिक को पकड़ के चलो, इसके साथ या तो अलजेब्रा ले लो या तो जियोमेट्री ले लो, गेम खत्म, राइट? मॉडर्न मैथमेटिक्स के अंदर जाना नहीं है। नंबर सिस्टम के अंदर 3-4 क्वेश्चन आएंगे, सोचेंगे, टाइम मिलेगा तो वी विल थिंक, राइट? मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि सर हम सबको हटा देंगे, लेकिन हम भी सोचेंगे कि सर हमारे पास कितना टाइम है, कितने रिसोर्सेस है, कैसे यूटिलाइजेशन करना है, या तो इसको कैसे प्रिपेयर करना है। Yes, Prashant sir, over to you. अंकुर सर, आई थिंक मैंने सही लिखा होगा। So this is where 30% of the this thing is come and 70% वहां जाएगा। Yes, 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 absolutely. Right. So guys, again, आप में से कई लोग मेरे से पूछ रहे थे सर मैथ्स कैसे कवर करें, क्या करें? ये सब चीजें आप लोगों ने 9th के अंदर कर रखी हैं। ये सब चीजें आपने 9th के अंदर कर रखी हैं। देखो 8, 9, 10th के अंदर जो आपका मैथमेटिक्स आते हैं दोस्त, वही मैथमेटिक्स आता है। थोड़ा इसका जो लेवल है वो ग्रेजुएट लेवल कर दिया, दैट्स इट। बाकी कोई चेंजेस नहीं है। वहां पे पेपरमेंट चॉकलेट की बातें होती थी, यहाँ पे कुछ और बातें होती होगी, दैट्स इट। बाकी कोई चेंजेस नहीं है। 100% 8, 9, 10th का मैथमेटिक्स है। और DALR आपका एप्लीकेशन है उसका, नथिंग एल्स। ठीक है, तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी पड़ेंगी जब आप आते हैं। मैं बाकी एंट्रेंस एग्जामिनेशन का भी डिटेल में बात नहीं करूंगा। बाकी एंट्रेंस एग्जामिनेशन मोर और लेस सिमिलर लाइंस के अंदर चलेंगे, राइट? सो ये आपको करना पड़ेगा। एक चीज और मैं लास्ट में दिखाना चाहूंगा, मैं जो स्टडी शेड्यूल की बात कर रहा था, सो दिस इज द काइंड ऑफ स्टडी शेड्यूल आपको बनाना पड़ेगा, राइट? ये मैं एक नॉर्मल जनरलाइज बता रहा हूं, आपको डेली बेसिस पे ऐसा शेड्यूल बनाना पड़ेगा। नाउ सॉल्व आरसीज, बच्चा बोलता है इट इज टू ब्रॉड, इट इज टू ब्रॉड। आरसीज के अंदर क्या? सो आरसीज के अंदर फॉर एग्जांपल आई विल शो यू, राइट? सो अगर मैं आरसीज के अंदर जा रहा हूं, सो जस्ट अ मिनट, here we go, new share, desktop, share screen. Can you see the screen guys? मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं? अंकुर सर, my screen is visible? Yes sir, yes sir. Perfect. Okay, now if you guys can see, मैंने यहाँ पर क्या लिखा है? Now these are the passages related to sociology. These are the passages. Yes, Ankur sir, even I have the same. So these are the passages related to sociology, right? आपको मैं specifically sociology related passages दूंगा,
राइट आपको पैसेजेस कैसे और कौन से सॉल्व कर रहे हैं. देन आई विल गिव यू द पैसेजेस रिलेटेड टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड अगर पैसेजेस आ गए तो उसमें क्या क्या जार्गन्स होंगे. सो ये सारी चीजें आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेंगी. तो सॉल्व आरसीज इज टू जेनरिक, यू कांट से सॉल्व आरसीज. आरसीज के अंदर क्या किस तरीके के क्वेश्चंस, इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चंस करोगे, आप फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस करोगे, आपको इस तरीके की प्रिपरेशन बनानी पड़ेगी. एंड दैट्स वेयर यू नीड पीपल लाइक अस. हम लोग यहीं पर आप लोगों की हेल्प करने के लिए हेल्प आ सकते हैं. राइट. सो quickly I'll get into this thing. So मैं फटाफट आपको बता देता हूं बिफोर आई शेयर माय टेलीग्राम ग्रुप, माय कांटेक्ट डिटेल्स एंड माय यूट्यूब चैनल लिंक एज वेल. सो अंकुर सर, इन द मीन टाइम इफ यू कैन जस्ट send it to everyone, the telegram channel group, so that they can be added, and also share with them the YouTube link as well, जहां मैं books reading वगैरह की बात करता हूं if you have. And guys, very important thing to all the 67 students, एक बार एक important information को सुन लो. Monday से we are starting 5 days exclusive classes, or not even 5, 6 days exclusive classes from Monday to Saturday. मैं आपको टाइम बता देता हूं, Monday to Saturday का टाइम और डेट मैं आपको बता देता हूं. हम एक्सक्लूसिव क्लासेस शुरू कर रहे हैं. रेस टू कैट 22. This is open for all the students. Live sessions will be there. I repeat, race to cat 22. ये सेशन जो है स्टार्ट हो रहे हैं मंडे से. मंडे when I'm saying 19th, I mean 18th, 19th, 20, 21st, 22nd, 23rd. From 18th to 23rd, exclusive sessions start हो रहे हैं. Race to Cat 22, जहां पर हम लोग बात करेंगे कि आपको किस तरीके से Cat 22 को अप्रोच करना है. जहां पर हम LRDI के सेशंस रखेंगे, स्पेसिफिकली किस तरीके की पजल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं. I will talk about how to solve parajumbles, how to solve reading comprehension. Jay sir will talk about some other stuff as well. Here we go. I'm just sharing with you the message. मैं आपको मैसेज कर रहा हूं, प्लीज रजिस्टर कर लीजिएगा. These are free classes for everyone, right? So आप प्लीज इसको मिस मत करिएगा. जो चीज इंफॉर्मेशन जैसे मिल रही है प्लीज आप उसको करिए. आप प्लीज ये फॉर्म फिल करिए. सोलोनी मैम ने आपको अभी जस्ट इंफॉर्मेशन अभी भेजी है, सर्कुलेट करिए. आप इस लिंक पे जाके रजिस्टर कीजिए, इस लिंक को कॉपी कर लीजिए. आप इस लिंक पे कॉपी करेंगे तभी जाके आपको कॉल आएगा और आप इस लिंक पे जाके रजिस्टर कर पाएंगे और क्लास अटेंड कर पाएंगे. A very important thing, race to cat 22 thing coming up from 18th of April 7 p.m. From 18th April से 7 p.m. to 8:30 p.m. ये डेली बेसिस पे क्लासेस लगेंगी. And I'm telling you, this will be something which will be eye opener for you guys while solving your and guys don't be selfish. देखो ऐसा है कि सर हमको फ्री का माल मिल गया है तो दूसरे को नहीं बताना है, वैसा नहीं है. Guys, please share with your groups, your relatives, your friends, those who are also preparing for the CAT exams, right? Try to understand कि आपकी छोटी सी हेल्प किसी का जो करियर बदल सकती है दोस्त, तो उनसे बड़ा थैंक यू हमारे और आपके जीवन में नहीं हो सकता. राइट. तो हर कॉलेज के अंदर, हिंदुस्तान के हर कॉर्नर के अंदर, जहां जहां तक हम नहीं पहुंच सकते, हम आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं गाइस, प्लीज इस लिंक को मैक्सिमम शेयर करना आपके ग्रुप्स को, जहां जहां कर सकते हो. ओपन टू यू, मतलब आपके ऊपर है कि आपको करना है नहीं करना है, व्हाटएवर. बट यस, मेरी रिक्वेस्ट है, डोंट बी सेल्फिश. राइट. And those who will attend the session, yes, please fill the form. And those who will attend the session will also get an access to Make My Test. आप Make My Test का access ले सकते हैं. आप Make My Test में जाके अपने हिसाब से टेस्ट क्यूरेट कर सकते हैं according to the difficulty level, according to the topic you want to choose. आप कौन से टॉपिक पे easy, medium, difficult टेस्ट चाहते हैं, कितने क्वेश्चंस का टेस्ट चाहते हैं, सब कुछ आप कर सकते हैं. Going to Make My Own Test, इसका access आपको मिलेगा. इसके अलावा you should download e-coaching app as well. Please आप e-coaching ऐप डाउनलोड कर लीजिए. अंकुर सर, कैन वी हैव द मैसेज प्लीज इफ यू हैव रेडी फॉर द ई-कोचिंग ऐप, द स्टेप्स एंड एवरीथिंग. इफ यू हैव, प्लीज शेयर इट विद अस. टू चेक्स. अच्छा, ओके. सलोनी मैम और कल्पेश सर, इफ यू गाइस हैव, यू कैन शेयर इट विद अस. राइट. सो ई-कोचिंग ऐप आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं. और मैं लास्ट चीज आपको एक बार टेलीग्राम ग्रुप का एक एक्सेस और दिखा रहा हूं. राइट. टिल द टाइम अंकुर सर, इफ यू कैन सी, मैं आपको एक टेलीग्राम ग्रुप का एक लिंक दिखा रहा हूं जहां में क्या भेजते हैं, किस तरीके से होता है सारा कुछ. सो दिस इज अ टेलीग्राम ग्रुप, इफ यू कैन सी. राइट. सो दैट्स इंस्टाग्राम लाइव सेशंस एंड एवरीथिंग हैपनिंग. इसके अलावा इफ यू कैन सी हियर all the newspaper and everything, Hindu, Mint, all these things are going there, right? ये सारी चीजें यहाँ पर जा रही हैं. Then we have some webinars going on there in the Telegram group. Then I also share the article, the recommended article for the day. If you can say, Eon says nature doesn't care. So all these things are important for you. अगर आप CAT की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको उस ग्रूव के अंदर आना पड़ेगा. अगर आप उस ग्रूव के अंदर नहीं हो पाएंगे तब
आपको शायद so here we go. I think अंकुर सर ने अभी आपको मैसेज भेजा है, प्लीज इस मैसेज को भी देख लीजिए, आपको कैसे डाउनलोड करना है। शायद अभी हम लोग इस सेशन को आप लोग सुन रहे होंगे, जो चीज सलोनी मैम ने भेजी है लिंक वगैरह जो अंकुर सर भेज रहे हैं, उसको एटलीस्ट चुपचाप करके नोट करते रहिए और बाद में उसको ऐड वगैरह कर लीजिएगा। एटलीस्ट इनकी फोटो ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो आपको चैट बॉक्स पे आ रहा है। हियर वी गो, सलोनी मैम ने अभी यूट्यूब के कुछ लिंक भेजे हैं, टेलीग्राम के लिंक भेजे हैं, रिकमेंडेड बुक्स का लिंक भेजा है, प्लीज इनके स्क्रीनशॉट लेते रहिए। एंड माय सजेशन इज गो अहेड, जितना आपको मिल रहा है, प्लीज पास दीज इंफॉर्मेशन रेज टू कैट 22 टू एज मेनी स्टूडेंट्स एज पॉसिबल, बिकॉज अगर वो आप कर पाएंगे तो शायद हम लोग अच्छी तरीके से इस चीज को और भी अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर पाएंगे। सो एज वी सेड, व्हाई वी आर हियर फॉर मोटिवेशन, वी आर हियर फॉर एडवाइस, वी आर हियर फॉर ट्रेनिंग, वी आर हियर फॉर सपोर्ट। यू नीड टू टेक दैट कॉल वेदर वी वांट टू स्टार्ट प्रिपरेशन विद ई कोचिंग और नॉट। और मुझे प्रिपरेशन करनी भी चाहिए नहीं करनी चाहिए, दैट इज द कॉल व्हिच यू नीड टू टेक। एंड व्हेन यू प्रिपेयर फॉर ई कोचिंग लाइव क्लासेस, दीज आर ऑल द थिंग्स व्हिच यू गेट, बी इट वीडियो लेक्चर्स टू कवर योर बेसिक्स, be it test series, the static test apart from make my test, live workshops, the way I am conducting here, आपको जो race to cat 22 मिल रहा है, that is basically the live workshops. Personal mentor will be allocated to you, make my test access and GDPI VAT sessions will also be given to you. So all these things will be there, and that's what we do. This is what the snapshot of e-coaching platform is. ये e-coaching platform का कुछ snapshot है, आपको जाके काफी कुछ चीजें यहाँ पर मिल जाएंगी। And at last, this is my email ID and this is my mobile number. You can reach out to me if you have any information. जैसे कई students का information आ रहा है, क्या charge होगा and all those things. अभी आप raise इसके अंदर सर मैं इंपोर्टेंट अनाउंस करना चाहता हूँ कि गाइस फॉर दिस वीक वी हैव ओपन सम स्लॉट्स। फॉर एग्जांपल, आप वरीड हो, आप इंडिविजुअली हमारे साथ मेंटर्स के साथ या जो भी एक्सपर्ट है उसके साथ बात करना चाहते हो कि व्हाटएवर योर 10th स्कोर, व्हाटएवर इज योर 12th स्कोर, आपका ग्रेजुएशन का स्कोर क्या है, आप कौन सी स्ट्रीम से बिलोंग करते हो और आपको कौन सी कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है, उसके लिए क्या परसेंटेज चाहिए और उसके बाद एमबीए के बाद क्या करियर हो सकता है, ऐसी बहुत सारी दुविधा जो आपके दिल और दिमाग के अंदर है, तो दोस्त प्लीज रिप्लाई योर मोबाइल नंबर इन चैट बॉक्स, आवर टीम विल कनेक्ट यू एंड आपके साथ स्लॉट बुक करेंगे। जूम के अंदर आपको 1 आवर मिलेगा एंड यस, वहां पे आप डायरेक्ट मेंटर से बात कर सकते हो। वी विल देयर एज अ टीचर, वहां पे हम आपको मदद करेंगे कि आपको सब्जेक्ट के अंदर कैसे स्पेसिफिकली फोकस करना चाहिए। यहाँ पे तो हमने जस्ट ग्लिम्स बताए, देन वी विल डिस्कस इन द डीपर, राइट। तो गाइस, इफ यू आर इंटरेस्टिंग फॉर द मेंटरिंग, आपको लगता है कि सर मुझे 1 स्लॉट बुक करना है विथ यू एंड एनीवन, सो प्लीज रिप्लाई योर मोबाइल नंबर इन द चैट बॉक्स क्विकली गाइस, प्लीज। Prashant sir, in case you are getting, please note down. Yes. Sure. Yeah. So that's it from my side, guys. If you have any questions, feel free to ask the question in the chat box. And if not, I wish to get your feedback as well. अगर आपके कुछ questions हैं, तो please do share your questions. Else, your feedback is really welcome. Please quickly in the chat box. I hope you have liked the session. I hope you must have enjoyed the session. That's what I can that's what I can say. So your feedback or your questions will really matter. So anything that you want to ask. Thank you, Pratik. आपका फीडबैक हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है क्योंकि आपके हम 1 आवर्स हम आपको इन्वेस्ट करवा रहे हैं या वेस्ट करवा रहे हैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सो आपका फीडबैक हमारे लिए इंपॉर्टेंस होता है। सो प्लीज, आपकी तारीफ, आपकी तालियां से ही तो हमारी सांसें चलती है। एज ए टीचर हम लोग, हमारा जीवन तो ऐसे चलता है। उज्ज्वला, थैंक यू राजू, थैंक यू अजीम, थैंक्स सनस्टोन यूनिवर्सिटी, आई डोंट नो, आई हैव टू सी तेजस। Yes, Muskan, can you please share your question again, dear? Thank you, everyone. Thank you. Thanks for the lovely feedback. ऋषिकेश, अब मेरे पास काउंट तो नहीं है भाई, 10 साल से पढ़ा रहा हूँ। भाई देखो नवीन, अभी ये चीजों पे मत जाओ ज्यादा कि मेरे को एमबीए इस पे करना है, इस पे नहीं करना। कॉलेज में जाओ, पहले कॉलेज में जाओ, सारे ऑप्शंस आपके लिए खुले होते हैं, तो ऐसे मत करना, कई बार आपको रिस्ट्रिक्टेड मत करो, ठीक है। Yes, Muskan, you will feel demotivated, and that's where I mean you have to push yourself up. That's the only thing which you can do, right? Talk to your mentors whenever you have time. Talk to your mentors, take their feedback, they will help you out for sure. Thank you, Preeti Prabha Behra, thanks a lot. Thank you Vishal. Yes, Muskan, so that's what I'm saying. So they talk to your mentors whenever there is. Very okay, good. thank you guys. Bye-bye. Thank you. राजू, 875 probably. Yes, extra time मिलेगा राजू, extra time मिलेगा for sure. आधा घंटा शायद एक्स्ट्रा मिलता है राजू।
Okay, Ankur sir, thank you. Bye bye. Thank you.